Friends, we started chapter number 3, electric current. In that first lecture, we talked about battery. Second was regarding electric current. थर्ड में हमने विलन को पकड़ा, दैट इज रेजिस्टेंस. फोर्थ में कहानी को आगे बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस की. In the third lecture, at the end, we had seen that resistance depends on three factors. One, type of substance. Second, temperature of substance. And third, we saw that it depends on dimensions of conductor. In dimensions, we took two parts, that is the length of conductor, and second was area of cross section. Area of cross section of the conductor. So in this breadth and height comes the length, breadth and height, all the three. Breadth and height together we call as area of cross section. So on these three factors resistance depends. Dependence on length was directly proportional to length. Dependence on cross section was inversely proportional to area of cross section. यानी longer the wire, more the length, more the resistance. Less the length, less resistance. Thin wire means less cross section, more resistance. Thick wire means more cross section, less resistance. So short and thick forms low resistance. Long and thin forms high resistance. Okay, then we combine these two and we say that R proportional to L by A, and to remove the proportionality we put a constant and that was kept as rho L by A, and this rho we introduced as resistivity. This rho we introduced as resistivity. यहाँ तक हम लोग पहुंचे हुए. Now moving further, नया बंदा आया तो उसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं. Let's talk something about resistivity. Resistivity is denoted by rho. Now first we take the definition of resistivity. तो definition obtain करने का एक मेथड बता देता हूँ. If you have a formula, then make the quantity subject of formula. So making rho the subject of formula, what we get is R into A by L. R into A by L. Now taking A equal to 1 unit, L equal to 1 unit, what we get is rho equal to R. यानी resistance of a conductor per unit length per unit area of cross section. Resistance of a conductor having unit area of cross section per unit length is called resistivity of material of that conductor. So that's how we define the resistivity. What about the formula? तो formula यही आ गया उसका. So let's see unit of it. Unit क्या आएगा इसका? तो resistance का तो ohm, area का meter square upon length का meter. So the unit will be ohm into meter. Now you very well know the dimensional equation of resistance. Using that you can get the dimensional formula. उसमें खाली length multiply करना है. Okay? तो resistivity का dimensional formula आ जाएगा. फिर बाद में on what factors does resistivity depends? किस पे डिपेंड करता है? तो रो डिपेंड्स ऑन, ना एक्चुअली रो है क्या चीज? इट्स रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दीस थ्री फैक्टर्स. इसमें तो हमने लेंथ को 1 कर दिया, एरिया को 1 कर दिया, तो ये दोनों तो फिक्स हो गए वैल्यू 1, तो इन पे तो डिपेंड करेगा नहीं. सो इट डिपेंड्स ऑन टाइप एंड टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टाइप एंड टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस. दो फैक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी. इट डिपेंड्स ऑन टाइप एंड टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. इसलिए डिफाइन करते हैं, बोलते हैं resistivity of the material of conductor. resistivity of conductor नहीं, क्योंकि कंडक्टर में लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फील्ड इन्वॉल्व होता है. इससे भी से resistivity of material of conductor depends on the material. लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो, अगर मटेरियल चेंज होता है तो ही resistivity चेंज होगा. मटेरियल चेंज नहीं होगा तो resistivity चेंज नहीं होगा. हाँ, if material is not changed and the temperature change then definitely. पर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन करते हैं, बड़ा वायर छोटा वायर इट डजंट मैटर. कॉपर का वायर है तो कॉपर की resistivity, that's all. तो it depends on the material of the wire. इसके साथ साथ भी डिफाइन कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी डिनोट बाय सिग्मा. कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो डिफाइनिंग द कंडक्टिविटी एज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, या इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. तो उसका यूनिट क्या होगा? इसका उल्टा. यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी will be 1 upon ohm into meter.
1 अपॉन उनको मोल लिखते हैं कंडक्टेंस का अपॉन मीटर, या फिर अगर सेमन यूज करें तो सेमन इंटू मीटर इनवर्स, और मो की जगह सेमन लिखे तो सब सेमन इंटू मीटर इनवर्स, तो ये उसके यूनिट होगा कंडक्टिविटी का। डायमेंशनल इक्वेशन इसका उल्टा, जो डायमेंशनल फॉर्मूला रेसिस्टिविटी का उसका एग्जैक्टली इनवर्स व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ conductivity. And resistivity and conductivity both are inverse of each other. Higher conductivity, lower resistivity, lower conductivity, higher resistivity. Okay. We saw that the resistivity depends on temperature of substance, type and temperature. So let's see the dependence of resistivity on temperature. Now, regarding the dependence of resistivity on temperature, we first discuss about good conductors. For good conductors. For good conductors, relation of resistivity with temperature is given as rho T is equal to rho 0 into 1 plus alpha into T minus T0. This is a predefined relation. We have to accept it directly without any proof. Rho T equal to rho 0 into 1 plus alpha into T minus T0. Now here, where rho 0 is resistivity at temperature T0. Now T0 will be reference temperature, so we'll call it as reference temperature. This might be 0, it might be 27 Celsius, it might be 20 degrees Celsius, anything it can be. Usually this T0 is taken as, usually, if nothing is given, then take it as 20 degrees Celsius. After that, rho T is resistivity at temperature T. So at temperature T0, resistivity is rho 0. At temperature T, resistivity is rho T. Okay, and then comes alpha. Alpha is called temperature coefficient of resistivity. Temperature coefficient of resistivity. And what it is? So it is given as 1 upon rho 0 into delta rho by delta T. Now you will think what this is. तो उसके लिए बात करें तो what we have is at temperature T0 resistivity is rho 0, at temperature T resistivity becomes rho T, at temperature T0 resistivity is rho 0, at temperature T resistivity becomes rho T. So therefore change in temperature कितना हुआ T0 से T, so T minus T0 is a change in temperature. resistivity में change कितना हुआ delta rho is rho T minus rho 0, यानी due to change in temperature delta T resistivity change by delta rho. Due to change in temperature delta T, resistivity change by delta rho. ये independent variable के कारण ये change हुआ. Because of this change, this changed. That means due to change in delta T, delta rho changed. So how much is the change in resistivity per unit change in temperature? And we are comparing the changes in resistivity with change in temperature. This is called relative change. This is called relative change and case of with respect to the original value. जो लिया उसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. सारी बातें टेम्परेचर के टर्म्स में, इसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. इसका यूनिट क्या होगा? तो रेजिस्टिविटी तो कैंसिल हो जाएगा. टेम्परेचर का इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स. यू विल से दैट कि सर इसमें केल्विन नहीं लेना है. नहीं, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर सेल्सियस में ले रहे हैं तो यू हैव टू स्ट्रिक्टली टेक इन सेल्सियस नॉट इन केल्विन. अगर केल्विन में लेना हो तो पहले सेल्सियस में कैलकुलेट करो फॉर्मूला से एंड फिर एट द लास्ट स्टेप कन्वर्ट इनटू केल्विन. बाकी केल्विन में नहीं लेना है. यहाँ पे कैलकुलेशंस टी एंड टी जीरो का स्ट्रिक्टली इन सेल्सियस, क्योंकि यूनिट यहाँ पे सेल्सियस इनवर्स लेते हैं. हाँ, अगर आपको डेटा में इसका अल्फा का यूनिट अगर केल्विन इनवर्स दिया है तो यू कैन कंटिन्यू विद केल्विन, डजंट मैटर. पर नहीं, जब तक नहीं दिया हो तो नहीं. अच्छा, फर्दर केल्विन में जब टेम्परेचर लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल टी लिखते हैं. ये स्मॉल टी लिखा है, इसका मतलब इट इज पर्टेनिंग टू टेम्परेचर इन सेल्सियस. एंड ऑल्सो बी वेरी केयरफुल, this is not time, it is temperature. The most common mistake of all the students is they consider this as time and फिर time लेके चालू कर देते हैं. So be very careful regarding it. ये अल्फा के बारे में. Now based on alpha we can get the different relations. Good conductor के लिए we get this relation. अच्छा, this formula we can write for resistance also. Same formula we can write for resistance also. क्यों? क्योंकि we know resistivity is R into A by L. Assuming that there is no major change in length or area of cross section due to heating. Assuming that there is no major change in or negligible change in length or area of cross section, resistivity and resistance will represent the same thing. इसे यही फॉर्मूला को यूँ लिख सकते हैं. RT equal to R0 into 1 plus
अल्फा इंटू टी माइनस टी जीरो, सेम टू सेम, ओनली डिफरेंस अल्फा टेम्परेचर कांस्टेंट रेजिस्टिविटी था, उसके अलावा रेजिस्टेंस देखेंगे, वैल्यू तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, वैल्यू डज नॉट चेंज, टेम्परेचर सेम, खाली नाम उसका बदल जाता है। ये रेजिस्टेंस देखते हैं, अगर रेजिस्टेंस के बारे में तो सेम टू सेम फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए भी, बोथ द फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स को ध्यान में रखे, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू में ये खास पूछे जाते हैं ना। अल्फा की वैल्यू के बारे में थोड़ा डिस्कशन करें तो फॉर कंडक्टर्स अल्फा इज पॉजिटिव। अब अल्फा पॉजिटिव मतलब क्या होगा, डेल्टा रो बाय डेल्टा टी इज पॉजिटिव, ये तो फिक्स है, वैल्यू पॉजिटिव होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस चेंज इन टेम्परेचर बोथ आर पॉजिटिव। चेंज पॉजिटिव मतलब क्या, याद करें, व्हाट इज चेंज, चेंज इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, चेंज इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर चेंज पॉजिटिव है, ऐसा कब होगा, डेल्टा पॉजिटिव मतलब इट इंप्लाइज एफ इज बिगर देन आई, यानी फाइनल वैल्यू इज बिगर देन इनिशियल, मतलब क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड। अगर क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो फाइनल वैल्यू विल बी बिगर देन इनिशियल, सो डेल्टा विल बी पॉजिटिव। तो अगर डेल्टा पॉजिटिव तो इंक्रीजेस, और डेल्टा अगर नेगेटिव लिया हो, चेंज अगर नेगेटिव हो तो मतलब फाइनल वैल्यू इज लेस देन इनिशियल, देयरफॉर द क्वांटिटी हैज डिक्रीज्ड। जो भी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो, यानी चेंज अगर पॉजिटिव तो इंक्रीजेस, चेंज अगर नेगेटिव तो डिक्रीजेस। अल्फा पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, डेल्टा रो बाय डेल्टा टी पॉजिटिव, यानी डेल्टा रो अगर पॉजिटिव तो डेल्टा टी भी पॉजिटिव, यानी रो इंक्रीज होता है तो टी भी इंक्रीज हो रहा है, एंड डेल्टा रो नेगेटिव है तो डेल्टा टी भी नेगेटिव। सो व्हाट डज दिस इंक्रीज, विच शो as temperature increases resistivity also increases. So for good conductors with increase in temperature resistivity increases, for good conductors with increase in temperature resistivity increases. Graphically अगर इसको represent करें तो we can show it by this way, resistivity versus temperature, straight line graph, with the increase in temperature resistivity increases, बराबर है। अब जरूरी नहीं कि जीरो से चालू हो, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, यहां से शुरू होता हो, यानी टेम्परेचर जीरो पे रेजिस्टिविटी जीरो भी हो सकती है, टेम्परेचर जीरो पे रेजिस्टिविटी जीरो नहीं भी हो सकती। सर्टेन एलिमेंट्स आर सच दैट दे डू नॉट हैव रेजिस्टिविटी जीरो एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टिविटी जीरो होना जरूरी नहीं है टेम्परेचर t इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तो ये दो ग्राफ हो गए कंडक्टर के लिए कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, स्लोप पॉजिटिव। ओके, for semiconductors, sorry, for carbon and semiconductors, for carbon and semiconductors alpha is negative। अल्फा नेगेटिव मतलब क्या हुआ, दो में से एक चेंज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो ये रेशियो नेगेटिव बनेगा, दो में से एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक बढ़ता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, तो इसके लिए क्या बनेंगे, दैट इज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, रिलेशन उल्टा हो गया, दैट इज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी डिक्रीज। सो फॉर कार्बन एंड सेमीकंडक्टर्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, ये खास नोट करें। इसको ग्राफिकली बताते हैं तो वी शो इट बाय दिस वे, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। ग्राफ क्या बताएगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, इट विल कम लाइक दिस, दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर एंड कार्बन। ओके, हाँ अभी एक और बाकी रहा, कौन, मैंगनीज। Manganese. Now manganese is an alloy whose alpha is 0. Manganese is an alloy whose alpha is 0. So what we can say from this one, alpha 0 मतलब क्या हुआ, delta rho 0 है, delta rho 0 मतलब क्या हुआ, therefore delta rho is 0 and delta rho change is 0 मतलब final में initial is same, मतलब के resistivity is constant, यानी चाहे टेम्परेचर चाहे कितना भी चेंज हो रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। ये मैंगनीज ऐसा एलॉय है जिसमें टेम्परेचर चाहे कितना भी चेंज हो, व्हाटएवर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, कितने भी धूम धड़ाके करे टेम्परेचर, बट रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डज नॉट चेंज, बराबर है, ये इसकी खासियत है फॉर दिस एलॉय। अच्छा, इसका फायदा क्या, टेम्परेचर में चाहे कितना भी वेरिएशन है रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, मींस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल नॉट चेंज, तो इट्स अ मोर रिलायबल रेजिस्टर। ऐसा रेजिस्टर होगा जिसमें टेम्परेचर के चेंज के साथ रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होगा। And at certain devices made which are working on base of resistance, उनको अगर geographically लोकेशन चेंज कैसा हो, पोलर रीजन से इक्वेटर पे जाए तो टेम्परेचर में ड्रास्टिक चेंज होगा, एंड ड्यू टू दैट रेजिस्टिविटी चेंज होगा, तो ये तो ठीक नहीं रहा, द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस विल चेंज। इसीलिए
ऐसे डिवाइसेस के लिए ये टाइप का रेजिस्टिविटी मटेरियल यूज करते हैं जिसमें रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज. इससे मैंगनीज कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ मोर रिलायबल रेजिस्टर. बेटर कंडक्टर या बेटर रेजिस्टर नहीं, मोर रिलायबल, यानी जिसकी वैल्यू में ज़्यादा चेंज ना हो, भले टेम्परेचर कुछ भी चेंज हो, टेम्परेचर बढ़े या कम हो, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज. Okay, that's the dependence of resistivity on temperature. So now switching over to a new concept, that's current density. Current density basically क्या है? तो density means per unit volume. Current per unit volume नहीं, यहाँ पे क्या देते हैं? Suppose this is a conductor, current is passing through this. Let's suppose current I is passing. Cross section has an area A. Then amount of current passing per unit area of cross section perpendicularly. That's called current density. तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया. तो पर यूनिट एरिया कितना करंट पास होता है, दैट्स कॉल्ड करंट डेंसिटी. इसका यूनिट क्या आएगा? सो स्वीट एंड सिंपल, करंट का एम्पियर अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर. डायमेंशन इक्वेशन यू कैन इजीली जज. डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर करंट डेंसिटी m0 L-2 T0 A1. ये करंट डेंसिटी के बारे में हो गया ना. आप सोचोगे कि व्हाट इज दिस रिक्वायर्ड. Now, normally for conductor it's not much important, but irregular conductors हो, irregular shape वाले conductors हो, तो उस केस में इसका ज़्यादा importance रहता है. हमारे लिए तो it's normally it's a current passing per unit area of cross section. याद रखें, current passing per unit area of cross section, okay, that's called current density. अब इसके एक alternate formula भी obtain कर देते हैं. According to Ohm's law, we have V equal to IR. अब here R can be written as rho L by, अभी ऑप्टेन किया ताजा. एंड V के लिए we can add V is equal to E into L. चैप्टर नंबर 2 का बिगनिंग का कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस. यहाँ पे कंडक्टर की बात करें तो दिस इज द कंडक्टर एंड इसको हमने अप्लाई किया था एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू जनरेट द करंट. याद होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बैटरी विच वी हैव अप्लाइड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E and the length of the conductor L. So E into L is potential difference across the two ends of the conductor. E into L हो गया. इन दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो therefore what we get is E into L is equal to rho L by A into I into A. Now L cancels, I by is J, so this J into rho, that gives E. तो J का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो therefore J will be equal to E by rho. एक one of the important formula and one upon inverse of resistor is conductivity, तो this can be sigma into E. इसको भी लिख सकते हैं. So formula for J, अलग अलग फॉर्मूला जो J के में है उसमें एक I upon A, another sigma into E, तीसरा P by rho. ये तीन फॉर्मूला हमको करंट डेंसिटी के मिले. अपार्ट फ्रॉम दिस also J can be given as NEVD. J can be given in this form also. ये VD क्या है? It is called drift velocity. याद होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ड्रिफ्ट होता है जो उसकी वेलोसिटी. E is the charge on electron. That is a charge carrier which is passing, forming the current. And N, यहाँ पे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बन जाता है. N को बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर डेंसिटी यानी क्या? तो नंबर डेंसिटी को हमने 11 में भी देखा हुआ इन चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ओके, वी हैड सीन नंबर डेंसिटी देयर. नाउ व्हाट इज दैट नंबर डेंसिटी? नंबर डेंसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम था वहां पर. यहाँ पे क्या होगा नंबर डेंसिटी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब इनवर्स. इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. चला गया? तो यहाँ पे ये हो गया n, तो J इक्वल NEVD. नाउ इसको दोनों को इक्वेट कर, दोनों इक्वेशंस को, तो व्हाट वी गेट इज I upon A is equal to NEVD. So from this we can say I is equal to NAEVD. ये एक और फॉर्मूला करंट को फाइंड करने के लिए Q by T है और दूसरा ये फॉर्मूला NAEVD. I equal to V by R, Ohm's law से भी हो सकता है. यानी बेस्ड ऑन द गिवन क्वांटिटीज यू कैन यूज डिफरेंट फॉर्मूला. तो एक आई का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाते हैं. फिर ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग करंट डेंसिटी. हाँ, एक और बात कि
जे के फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वी कैन एड्रेस जे बार इक्वल टू सिग्मा इंटू ई बार, राइटिंग जे इन वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये पॉपुलर एमसीक्यू है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज जे बार इक्वल टू सिग्मा ई बार, एंड इसी पर से हम लोग बोल सकते हैं कि जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन है यहाँ से अंदाजा नहीं लगा सकते, पर यहाँ से बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में जे का डायरेक्शन होगा। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग जे बार इक्वल टू वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी। नेक्स्ट वी ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आइदर ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी और एक्सप्लेन हाउ रेजिस्टिविटी वेरीज विद टेम्परेचर। ये दो में से किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नाउ व्हाट वी से दैट between two collisions of electron while moving through conductor, motion is accelerated motion is accelerated। ऐसा क्यों? क्योंकि we know that electron was moving like this, किसी एक पॉजिटिव आयन से टकराया, फिर उसने पाथ चेंज किया, दूसरे पॉजिटिव आयन पर टकराया, फिर पाथ चेंज किया। नाउ व्हेन इट कोलाइड्स एट दैट टाइम वेलोसिटी बिकम्स जीरो मोमेंट रेडियस, व्हेन इट कोलाइड्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो मोमेंट रेडियस, एंड फिर आगे बढ़ता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेन्स वेलोसिटी एंड अल्टीमेटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वेलोसिटी आके टकराता है दूसरे को। यानी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में स्पीड इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू वीडी, कोलिजन के बाद इमीडिएटली जीरो हो जाता है एंड फिर आगे बढ़ता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट मूव्स फॉरवर्ड एंड गेन्स अ स्पीड वीडी व्हाइल कोलाइडिंग विद अदर वन। तो स्पीड हैज चेंज फ्रॉम जीरो टू वीडी ड्यूरिंग बिटवीन द टू कोलिजन्स और ड्यूरिंग द कोलिजन। ओके, तो इधर क्या बोलेंगे कि स्पीड बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। एक्सेलरेटेड मोशन देयरफॉर वी कैन राइट v इक्वल टू v0 प्लस at, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए फॉर्मूला। नाउ हियर इन दिस केस इनिशियल स्पीड तो जीरो है, फाइनल स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन की टर्म, तो एक्सेलरेशन इज गिवन एज फोर्स अपॉन मास। यहाँ फोर्स कौन लगा रहा है? इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज गिविंग द फोर्स, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स का फॉर्मूला ऑन अ चार्ज पार्टिकल q इनटू e। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स का फॉर्मूला ऑन अ चार्ज पार्टिकल q इज q इनटू e। तो यहाँ पे हो जाएगा q कौन है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसलिए e इनटू e अपॉन m, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। एंड यहाँ पे t को क्या लिखेंगे? तो t इज कॉल्ड टाउ। व्हाट इज दिस टाउ? टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स देयर इज नो अदर कोलिजन्स, नो अदर डाइवर्जेंस। एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में नो अदर कोलिजन्स, नो अदर डाइवर्जेंस, मतलब द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, रिलैक्सिंग। रेस्ट तो नहीं बोल सकते, इट इज रिलैक्स्ड, नो अदर कोलिजन्स बिटवीन द टू। जैसे आप एक ट्यूशन में आए, बराबर है, एक ट्यूशन में आए, पढ़ा पूरा 1.5 घंटा, सर ने थोड़े मारे, थोड़ी होमवर्क के प्रॉब्लम्स हुए, थोड़ा असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स हुए, फिर बाद में आप यहाँ से निकलते हो, दूसरे ट्यूशन में जाते हो, तो वहां पे भी सर ने बोला पहले होमवर्क लाओ, तो फिर एक कोलिजन हो गया। दो कोलिजन के बीच में, दो ट्यूशन के बीच में जो गैप था एक जगह से दूसरी जगह जाने का, उसमें कोई और चिंता थी नहीं, दैट वाज योर रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। पर हर बार सेम नहीं भी हो सकता है दूसरा चार्ज पार्टिकल इधर इतनी दूर आए तो दूर जाना, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है तो ज्यादा टाइम लिया। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नॉट सेम एवरी टाइम। इस टाइम क्या बोलते हैं इसको? एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। वी टेक द एवरेज ऑफ दीज ऑल टाइम इंटरवल्स। The average time interval between two successive collisions during which the charge particle relaxes is called relaxation time. अब यहाँ पे टाउ डिफाइन कर दिया। ओके, तो लेट्स सी व्हाट, ये सब कुछ फॉर्मूला में डालते हैं, देखिए क्या मिलता है। Putting all these values in this formula, what we get is Vd equal to initial speed तो 0 है, acceleration e by m into e by m into t is tau। ये फॉर्मूला हो गया Vd का। That's equation 1, ये equation 2। फिर आगे चलते हैं। Also we know that, हमको सब कुछ पहले से ही पता हो गया क्या? एक तो J इक्वल टू सिग्मा ई फॉर्मूला जो अभी लिया आगे करंट डेंसिटी का,
અને दूसरा फॉर्मूला J इक्वल टू NEVD, ये फॉर्मूला भी हमने लिया. Both the formula we took just in the previous topic. Equating both of them, what we get is sigma E is equal to NEVD. Okay, ये मिला. अब VD को यहाँ से उठा के ले जाते हैं using equation 2. What we get is sigma into E is equal to NE. VD is EE by M into tau. कुछ कैंसिल हुआ तो हमें कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मिला NE स्क्वायर टाउ बाय M. कंडक्टिविटी का इनवर्स इज रेजिस्टिविटी, therefore resistivity rho which is inverse of conductivity will be M upon NE square tau. This is the required formula for resistivity, M upon NE square tau, where M is the mass of electron, E is the charge on electron, N is the number density of electrons, number of electrons per volume, tau is the relaxation time. ये हो गया फॉर्मूला. अगर क्वेश्चन पूछा ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी, अगर क्वेश्चन पूछा ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी, तो यहां तक करीब बराबर है. फाइन, फॉर्मूला मिल गया. अब अगर पूछा एक्सप्लेन हाउ रेजिस्टिविटी वेरीज विद टेम्परेचर, तो उसको आगे डिस्कस करते हैं. As temperature increases, collisions become faster. Collisions faster, therefore relaxation time. Collision fast होगा तो बीच का टाइम कम हो जाएगा, relaxation time decreases. अब relaxation time कम हुआ, tau कम हुआ तो resistivity increases, therefore resistivity increases. So what we say for good conductor? As temperature increases, resistivity increases. क्लियर. तो अगर पूछा है एक्सप्लेन हाउ रेजिस्टिविटी वेरीज विद टेम्परेचर, 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 2 मार्क का डेरिवेशन होगा प्लस ये 1 मार्क का एक्सप्लेनेशन. इफ दिस डेरिवेशन इज देन विल बी जस्ट 2 मार्क क्वेश्चन ओनली. ऑब्टेन द फॉर्मूला, तो इतना 2 मार्क के लिए हो जाएगा. क्लियर. ये हो गया रेजिस्टिविटी का एक और फॉर्मूला. नेक्स्ट वी गो फॉर मोबिलिटी. मोबिलिटी यानी क्या है? इट्स आल्सो वन ऑफ द क्वांटिटी, नॉट मच इंपॉर्टेंट एज फार एज आवर स्टडी इज कंसर्न, पर फिर भी एक टॉपिक है छोटा सा. मोबिलिटी यानी क्या? तो हाउ डज इलेक्ट्रिक करंट कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इट इज ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस. तो कौन है चार्ज कैरियर? तो डिफरेंट मैटर के डिफरेंट फॉर्म में चार्ज कैरियर्स कौन कौन है वो देखते हैं. इन केस ऑफ सॉलिड्स, मैटर अगर सॉलिड मतलब मेटल्स की बात करें तो इट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कंडक्ट. फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेल्प इन कंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स हियर. इन केस ऑफ लिक्विड्स यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कंडक्शन करता है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स में इट इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. आप बोलोगे सर नेगेटिव आयन यानी इलेक्ट्रॉन ही तो हुआ. नहीं, इट्स नॉट आयनाइजेशन प्रोसेस, इट इज सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड. एक Na प्लस दूसरा Cl माइनस. तो दीज आर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस व्हिच कंडक्ट हेल्प इन कंडक्शन. तो इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्शन कौन करता है? पॉजिटिव नेगेटिव आयंस. इससे चार्ज कैरियर कौन हुए? पॉजिटिव नेगेटिव आयंस. गैसेस की बात करें तो नॉर्मली वी टॉक अबाउट आयनाइज्ड गैसेस. वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो तो आयनाइज होता है गैस, एंड उसमें फिर कंडक्शन शुरू होता है. कौन करता है ये? तो एक तो इलेक्ट्रॉन्स है एंड पॉजिटिव आयंस. खास ध्यान रखें यहाँ नेगेटिव आयंस नहीं होते. द मॉलिक्यूल ऑफ आयन डज नॉट डिसोशिएट, इट जस्ट नॉक्स आउट वन इलेक्ट्रॉन. आयनाइजेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा मॉलिक्यूल में से, वो इलेक्ट्रॉन, एंड दूसरा बचा हुआ पॉजिटिव आयन, दैट हेल्प इन कंडक्शन. हम लोग चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर के बारे में. तो सेमी कंडक्टर यानी क्या? इट्स अ पार्शियल कंडक्टर. ज्यादा डिटेल्स चैप्टर नंबर 14 में लेंगे, पर सेमी कंडक्टर में इट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड उसके अलावा होल्स भी कंडक्ट करते हैं, तो आल्सो हेल्प इन कंडक्शन. होल्स क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन. क्या पॉजिटिव चार्ज, पर क्या है वो तो ज्यादा डिटेल्स चैप्टर नंबर 14 में मिलेगी. तो दीज आर द चार्ज कैरियर्स व्हिच हेल्प इन कंडक्शन इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर. हियर वी डिफाइन mobility as defined as ratio of drift velocity of the charge carriers upon the electric field which makes them drift. The ratio of Vd and E gives mobility. Ratio of Vd and E gives a mobility. We have the formula for J, sigma into E. We have the formula for J, NEVD. दोनों को इक्वेट किया तो sigma E is equal to NEVD. Making Vd the subject of formula, Vd upon E as the subject of formula. So what we get is sigma upon n. तो मोबिलिटी का एक और फॉर्मूला हो गया सिग्मा अपॉन n. ओके,
अब इसका यूनिट देखें तो मोबिलिटी का यूनिट क्या आएगा, स्पीड, मीटर पर सेकेंड अपॉन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम. So you can place it as meter into coulomb upon Newton into second, and many more can be obtained. Okay, you can find out the dimensional formula also based on this. I leave it on you. So that's regarding mobility.